والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ ایک دانے کی مانند ہے انبتت اگیں سبع سنابل 7 بالیاں فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبۃ 100 دانے ہیں واللہ اور اللہ تعالی یضاعف بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ ایک دانے کی مانند ہے انبتت 7 سنابل اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں فی کل سنبلۃ 100 حبہ اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ گندم کا بیج ہم زمین میں بوتے ہیں، اس ایک بیج سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 خوشے ہوتے ہیں اس ایک بیج کے ساتھ، اور پھر ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ یہ ہے اس بندے کی مثال جو اپنا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، ہماری نیت کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں 7 گنا اجر دیتے ہیں، اور اگر ہماری نیت اس سے بھی خالص ہے تو پھر وہ ہمارا اجر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ 1 روپیہ اس کا اجر 700 روپے تک چلا جاتا ہے ہماری نیت کے مطابق۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کے صدقے کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے پوستے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں۔ ہم ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں احد پہاڑ جتنی کھجوریں خرچ کرنے کا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہماری نیت کے مطابق ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی یضاعف بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 700 گنا تک بڑھتا ہے اجر و ثواب، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء 700 گنا تک بس نہیں ہے، بلکہ 7000 گنا، 7 لاکھ گنا، 7 کروڑ گنا تک بھی بڑھ سکتا ہے اگر ہماری نیت خالص ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ کوئی حد نہیں ہے کہ صرف 700 گنا تک ہی اجر و ثواب ملے گا، بلکہ تا بغیر حد کے اس کو اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اگلی آیت، الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں
अमवालहुम अपना माल, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर, ला युतबिऊना नहीं वो पीछे लगाते, मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया, मन्नन कोई एहसान, वला अज़ा और ना कोई तकलीफ, लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना वो यहज़नून गमगीन होंगे। ये सवाब सिर्फ उन लोगों को हासिल होगा जो रज़ाए इलाही के लिए खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद ना किसी पर एहसान जलाते हैं और ना जुबान और अमल से कोई तकलीफ देते हैं। किसी को कुछ देकर एहसान जतलाना कबीरा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो लोग जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सुम्मा फिर, ला युतबिऊना उसके पीछे नहीं लगाते, मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया, मन्नन कोई तकलीफ, कोई एहसान जुतलाना, वला अज़ा और ना कोई तकलीफ देना। अमूमन होता क्या है हमारे मुआशरे के अंदर, हम किसी को कोई 1 रुपया दे देना तो सारी जिंदगी हम एहसान जलाते हैं। उस वक़्त को याद करो जब मैंने तुम्हारी मुश्किल वक़्त में मदद की थी, उस वक़्त को याद करो जब मैंने तुम्हारे ऊपर कोई नेकी की थी, तुम्हारे ऊपर एहसान किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला अज़ल्ला, खर्च करने के बाद ना उसे कोई एहसान जतलाना है और ना अपनी जुबान से ना अमल से उसे कोई तकलीफ देनी है। हम कहते हैं बस हमने जिंदगी में 1 दफा इसकी मदद कर दी है, अब ये हमारा गुलाम है, अब हम इसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लें। बल्कि नहीं, अगर हम ये अजर चाहते हैं, अजर क्या है, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इन लोगों का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके ऊपर कोई खौफ होगा और ना वो क़यामत के दिन गमगीन होंगे। वो लोग जो खर्च करने के बाद भूल जाते हैं, बस हमने खर्च कर दिया है, हमने अपने रब से इसका सवाब लेना है, अल्लाह के लिए हमने ये खर्च किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनसे क़यामत के दिन ना कलाम करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा और ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए अज़ाब अलीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये इरशाद फरमाया। अबू ज़र ने अर्ज किया वो तो नाकाम और नामुराद हो गए या रसूल अल्लाह, वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कपड़ा लटकाने वाला, एहसान जतलाने वाला और झूठी कसम के साथ अपना माल फरोख्त करने वाला। ये 3 किस्म के लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन ना नजरे रहमत से देखेगा और ना इनको गुनाहों से पाक करेगा और ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन इन लोगों से कलाम करेगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार कर रखा है। तो हमें इस काम से बचना चाहिए। अगर हम अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो फिर ना हमें एहसान जतलाना चाहिए और ना ही हमें अपनी ज़ुबान और अमल से किसी उस इंसान को जिसके ऊपर हमने अपना माल खर्च किया है उसको तकलीफ पहुंचानी चाहिए। क़ौलुम मारूफुन, अच्छी बात, व मगफिरतुन और मुआफ़ कर देना, खैरुन बेहतर है, मिन सदक़तिन उस सदके से, यतबउहा जिसके बाद अज़न इज़ा देना है, वल्लाहु अल्लाह ताला गनियुन बेनियाज, हलीम बुर्दबार है। यानी अगर कोई सदका नहीं कर सकता तो अच्छे अल्फाज के साथ माजरत कर ले और साइल के इसरार और बदतमीजी पर गुस्सा होने की बजाय मगफरत यानी मुआफ़ी और दरगुजर से काम ले और सोच ले अल्लाह ताला कितना गनी है, फिर भी कितना बुर्दबार है, जो हमारी खताओं के बावजूद हिलम से काम लेता है। अगर तुम किसी साइल को दे नहीं ना सकते तो अच्छी बात कहकर उसको भेज दो। ऐसा नहीं कि साइल के इसरार पर हम गुस्से में आ जाएं, लाल पीले हो जाएं, उस साइल को झिड़कना शुरू कर दें। ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना किया है। कौलुम मारूफुन, अच्छी बात कहना है, व मगफिरतुन या मुआफ कर देना है, दरगुजर करना है, खैरुम मिन सदक़तिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उस सदके से बेहतर है, यतबउहा जिसके बाद अज़न इज़ा देना है।
तुम सदका करते हो और उसके बाद उसे तकलीफ देते हो, इस सदके से बेहतर है कौलुम मारूफुन, तुम कोई अच्छी बात कहकर उसको बेच दो, व मगफिरतुन, या दरगुजर करो, साइल बार बार सवाल कर रहा है, तुम दरगुजर करते जाओ। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गनीयुन हलीम, बेनियाज और बुर्दबार है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेकी सदका है, और नेकी में से ये भी है कि तू अपने भाई को खुले चेहरे के साथ मिले, और ये कि अपने डोल में से उसके डोल में पानी डाल दे, ये भी सदका है। अपने दूसरे मुसलमान भाई को खुले चेहरे के साथ मिलना, हंसी अपने चेहरे के ऊपर लाकर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना, यह भी सदका है। और फिर अपने बर्तन से उसके बर्तन में पानी डाल देना, यह भी सदका है। तो इसलिए सदका वही है जो हम अच्छे और अहसन अंदाज के साथ करते हैं, गुस्से के साथ, साइल को झिड़क कर, लाल पीले होकर, इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है।